Hello everyone, welcome to the channel JRF Gurukul. Today we will be discussing about Alfred Lord Tennyson's Break Break Break. Before beginning, we would know something regarding Alfred Lord Tennyson, who was a very famous poet, um, English poet who lived during Victorian era. Next, we learn कि he was born on August 6, 1809 and died on 6th October 1892. Tennyson became the poet laureate, very important one. Tennyson became the poet laureate of England in 1850. ये year आप लोगों को याद रखने हैं 1850 and stayed in that position until his death, the longest ever for any laureate. Okay, and next we will learn कि he wrote many popular poems जो कि हैं there are a lot of poems he has written. One is In Memoriam, next The Charge of the Light Brigade, next The Break Break Break, next The Lady of Shalott, next Idylls of the King, and finally Ulysses. So these are the poems he has written in his lifetime. And one more poem Tennyson wrote In Memoriam. Yes, In Memoriam, to remember his close friend Arthur Henry Hallam. ठीक है, the full name of his friend is Arthur Henry Hallam, who died young. This poem made him very famous. ठीक है, In Memoriam is very famous poem, and this particular poem has made him famous. Okay, Queen Victoria liked his poems and also found comfort in his words when she was sad. Next, Tennyson was also given the title of Lord and sat in the House of Lords in England. Some famous lines from his poems are still quoted today. This is very famous. One, it is better to have loved and lost than never to have loved at all. ये in memoriam की lines हैं. These lines have been quoted from In Memoriam, very important one. And next, there's not to reason why, there's but to do and die. Next, we will learn about what is an elegy, because the poem in our syllabus Break Break Break, it is this particular poem is in AEC 1. ठीक है, सेमिस्टर 1 के लिए CCF में AEC 1 कंपलसरी पेपर में ब्रेक 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 नाम का एक पोएम है जो कि लिखे हैं अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन में, जो अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन ने जो कि बिलोंग करते थे विक्टोरियन एरा में. सो बिफोर बिगिनिंग ऑफ द पर्टिकुलर पोएम ब्रेक 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 वी नीड टू नो अबाउट व्हाट इज़ एन एलिजी. एलिजी क्यों, एलिजी के बारे में हम लोग बातें करेंगे क्योंकि ब्रेक 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 इज़ एन एलिजी. ठीक है, ये जो पर्टिकुलर पोएम है ये एक एलिजी फॉर्म में लिखे गए हैं. ठीक है, ये जो पोएम है एक एलिजी है. ठीक है, तो एन एलिजी, अब ये एलिजी है क्या, दिस वी नीड टू नो कि ये एलिजी है क्या. ठीक है, सो ये जो एलिजी है दिस इज़ एन एलिजी, मतलब एन एलिजी इज़ अ टाइप ऑफ पोएम दैट एक्सप्रेसेस सैडनेस और सॉरो. मतलब ये एक पेसिमिस्टिक पोएम होगा. हाँ, ओके, ये एक पेसिमिस्टिक पोएम है जहाँ पर सैडनेस और सॉरो के बारे में बातें किए जाएंगे. ठीक है, ये एक चीयरफुल, बहुत इंजॉयबल पोएम नहीं होता. ये सैडनेस के बारे में बातें करेगा. सैडनेस एंड सॉरो अबाउट द डेथ और लॉस ऑफ समथिंग. ठीक है, मतलब डेथ के बारे में भी बातें होंगे. इट ऑफन डिस्क्राइब्स द पोएट्स फीलिंग्स ऑफ ग्रीफ. अगेन ये ग्रीफ के बारे में बात भी करेगा. द मेन सब्जेक्ट ऑफ एन एलिजी इज़ usually the death of loved one, friend, important person, but sometimes it is about loss in general, not just death. ठीक है, बट मेनली ये जो डेथ के बारे में ही बातें करता है. ये डेथ किसी का भी हो सकता है, मतलब फ्रेंड का हो सकता है, लव्ड वन का हो सकता है, कोई क्लोज्ड वन का हो सकता है, किसी का भी हो सकता है, और इन जनरल नॉट जस्ट डेथ भी हो सकता है. ठीक है, एलिजीज कैन ऑफर कंफर्ट, होप और एक्सेप्टेंस इन द एंड, मूविंग फ्रॉम ग्रीफ टू पीस. हाँ, जो कि हमारे लाइफ का मोटो है कि हमें चलना है, नो मैटर व्हाट हैपन्स इन आवर लाइफ, दैट मे बी नेगेटिव, बट वी नीड to go on. There is no fixed structure for an elegy in modern times, but traditional elegies were often written with a specific rhythm and rhyme. ठीक है, एंड रेटोरिकल डिवाइसेस यूज्ड इन एलिजीज इंक्लूड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्या सारे रेटोरिक और फिगर्स ऑफ स्पीच यूज़ होते थे एलिजीज में. मेटाफर, सिमिलीज, स्ट्रॉन्ग इमोशनल लैंग्वेज टू शो डीप फीलिंग्स. ठीक है, एन एलिजी इज़ डिफरेंट फ्रॉम अ यूलॉजी. ये नाम एलिजी और यूलॉजी बहुत सिमिलर साउंड करते हैं पर दोनों अलग हैं. एलिजी और यूलॉजी का मतलब क्या है, विच इज़ अ स्पीच इन प्रेज ऑफ समवन. ये प्रेज के बारे में होता है. ये जो यूलॉजी है ये प्रेज किया जाता है किसी का. ठीक है, प्रेज ऑफ समवन हु हैज़ डाइड, जो कि मर चुका है पर उनका ही प्रेज हो रहा है. ठीक है, यूजुअली गिवन एट अ फ्यूनरल, जो कि आफ्टर डेथ
रिचुअल्स माने जाते हैं. सम फेमस एग्जाम्पल्स आर, हाँ एलिजिस के कुछ फेमस, बहुत ही फेमस है, बहुत बहुत ज़्यादा फेमस है. ये आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हो. और आप अगर आप लोगों को यही PDF चाहिए, रिटन मटेरियल चाहिए हार्ड कॉपी मैनर में, हार्ड कॉपी तो नहीं दे पाऊँगी, सॉफ्ट कॉपी मैनर में चाहिए, तो यू कैन कॉमेंट बिलो. आई विल आई विल बी वेरी हैप्पी टू शेयर विथ यू ऑल. ठीक है, ये जो सारे फेमस एग्जाम्पल्स हैं ये थोड़े पढ़ लेना. वो कैप्टन, माई कैप्टन बाई वॉल्ट विटमैन, एलिजी रिटन इन अ कंट्री चार्ट चेयर बाई थॉमस ग्रे, इन मेमोरी ऑफ WB Yeats बाई WH Auden, लिसीडस बाई जॉन मिल्टन, ब्रेक 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 बाई एल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन, जो कि हमारे सिलेबस में है. नेक्स्ट वी विल स्टडी ब्रेक 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 पोएम बाई एल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन. स्टैंजा 1 में कहा जा रहा है ब्रेक 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 ऑन दाई कोल्ड ग्रे स्टोन्स ओ सी. ठीक है, ये है लाइन. द स्पीकर कमेंड्स द सी वेव्स टू क्रैश रिपीटेडली. ये रिपीटेडली क्यों आ रहा है? क्योंकि ये जो बार बार से एक ही वर्ड को दोहराया जा रहा है कि ब्रेक ब्रेक ब्रेक. ठीक है, तो इसीलिए रिपीटेडली ऑन द कोल्ड ग्रे स्टोन्स, जो कि बोल्डर होते हैं ना, जो कि बोल्डर हमें देखने को मिलते हैं सी साइड में, वही बोल्डर्स की बात हो रही है यहाँ पर, स्टोन्स. ठीक है, इसे कहा जा रहा है कि स्टोन्स, कोल्ड ग्रे स्टोन्स. ठीक है, तो नेक्स्ट यहाँ पर रेटोरिक, कुछ रेटोरिक्स के यूज़ किए गए हैं. वो है ऑफ कोर्स रिपीटेशन एंड अपोस्ट्रॉफी. ठीक है, क्योंकि ये जो शोज़ इमोशनल टर्ब्यूलेंस. टर्ब्यूलेंस मतलब ये जो पोएट है अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन है, ये कोई हैप्पी स्टेट में नहीं है, ये बहुत टर्ब्यूलेंस स्टेट में है, ये बहुत मतलब रेस्टलेस स्टेज में है. ठीक है, OC इज़ डायरेक्ट एड्रेस टू समथिंग नॉन ह्यूमन. वी ऑल नो कि सी तो नॉन ह्यूमन है, ये तो ह्यूमन थिंग नहीं है, तो इसे एक डायरेक्ट एड्रेस किया जा रहा है OC. यहाँ पर ना एपोस्ट्रॉफी की यूज़ किया जा रहा है. नेक्स्ट लाइन, एंड आई वुड दैट माई टंग कुड अटर द थॉट्स दैट अराइज इन मी. ठीक है, तो यहाँ पर द स्पीकर विशेज ही कुड एक्सप्रेस हिज ग्रीफ एंड इमोशंस बट फाइंड्स हिमसेल्फ अनेबल टू स्पीक. जो भी कुछ द पोएट इज फीलिंग एट दिस पॉइंट, ही इज़ नॉट एबल टू एक्सप्रेस, ही इज़ नॉट एबल टू टेल. ठीक है, नेक्स्ट रिटोरिक क्या है? डिज़ायर और लॉन्गिंग, यूज ऑफ वुड सिग्नल्स यर्निंग ऑफ एक्सप्रेशन. नेक्स्ट स्टैंजा 2, ओ वेल फॉर द फिशरमैन्स बॉय. नया करेक्टर आ गया जो है कि ना फिशरमैन बॉय, हाँ फिशरमैन्स बॉय, दैट ही शाउट्स विथ हिज सिस्टर एट प्ले. ठीक है, देयर आर 2 कैरेक्टर्स की, फिशरमैन्स बॉय हो गया और एक हो गया सिस्टर. ओके, ऑब्जर्विंग चिल्ड्रन प्लेइंग हैप्पीली. हाँ, यहाँ पर 2 बच्चे हैं, क्योंकि ये बॉय हैं, उनका सिस्टर तो उससे भी छोटा होगा, है ना. ऑब्जर्विंग चिल्ड्रन प्लेइंग हैप्पीली मेक्स द स्पीकर अवेयर ऑफ अ स्टार्क कॉन्ट्रास्ट विथ हिज ओन सॉरो. ठीक है, ये जो एक स्टार्क कंट्रास्ट हो गया यहाँ पर कि अभी तो ये सैड था, पर ये जो दोनों बच्चे खेल रहे हैं, इनके साथ, इनके इमोशंस के साथ पोएट का इमोशन का एक स्टार्क कंट्रास्ट हो गया, है ना. तो यही हो रहा है, ये द पोएट इज़ ऑब्जर्विंग. ठीक है, फ्रॉम दी सी, फ्रॉम नॉट सी, फ्रॉम दी शोर लाइन. ठीक है, ये वहाँ से देख रहा है. और रिटोरिक, यहाँ पर क्या क्या रिटोरिक के यूज़ किए गए हैं? जक्स्टापोजिशन. जक्स्टापोजिशन मतलब 2 इमोशन, मतलब चिल्ड्रंस जॉयफुल प्ले वर्सेस स्पीकर्स सैडनेस और ग्रीफ. ठीक है, नेक्स्ट, ओ वेल फॉर द सेलर लैड. लैड मतलब लड़का. ठीक है, दैट ही सिंग्स इन हिज बोट ऑन द बे. ठीक है, यहाँ पर और एक लड़के के बारे में बात कर रही है, बात किया जा रहा है. द सेलर बॉय सीजलेसली सिंगिंग, मतलब ये जो केयरलेसली जो ये लड़का ये गा रहा है विद स्पीकर्स डीप ग्रीफ. यहाँ फिर से जक्स्टापोजिशन आ गया, फिर से क्या आ गया? जक्स्टापोजिशन आ गया. और यहाँ पर जो रिपीटेशन हो रहा है ना, जो कि ये अगेन यहाँ पर हो गया जॉय, अभी इसीलिए तो गाना गा रहा है जॉय में. और द पोएट इज़ इन ग्रीफ, जो ग्रीफ में है, द पोएट इज़ इन ग्रीफ. ठीक है, इसलिए ये हो गया फिर से जक्स्टापोजिशन. तो रिपीटेशन ऑफ ओ वेल एड्स एम्फेसिस. एम्फेसिस मतलब इंपॉर्टेंस देना, एंड जक्स्टापोजिशन एंड अंडरस्कोर्स द डिफरेंस इन मूड. अगेन ये डिफरेंस हो गया, ठीक है ना, ये फिर से डिफरेंस हो गया. ठीक है, नेक्स्ट स्टैंजा 3 में हम देख सकते हैं, एंड दी स्टेटली शीप. स्टेटली मतलब जो मैसिव, जो कि मैसिव शिप्स होते हैं ना, उनके बारे में बातें हो रही हैं. एंड द स्टेटली शिप्स गो ऑन टू देयर हेवन अंडर द हिल. शिप्स कंटिन्यू ऑन देयर जर्नी टू सेफ हार्बर, सिंबलाइजिंग द ऑनगोइंग नेचर ऑफ लाइफ. टू बिगिन दिस पर्टिकुलर लेक्चर आई हैव ऑलरेडी मैंशनड कि जो भी हो जाए, वॉट एवर हैपन्स इन अ लाइफ, we must go on, life must go on. The same thing is happening here as well. The poet is emphasizing or giving importance to that कि जो भी हो जाए, whatever happens, no matter whatever happens, ये जो चीज़ है इसे करना है.
ठीक है। रेटोरिक क्या है? मेटाफर है। ships represent life's journey and continuity, but oh for the touch of a vanished hand and the sound of a voice that is still, ठीक है, that is still the speaker deeply misses his lost friend longing for the physical presence। अभी तो वो नहीं रहा, वो जो फ्रेंड है वो नहीं रहा, इसीलिए कहा जा रहा है कि टच ऑफ अ वैनिश्ड हैंड, क्योंकि वो तो नहीं रहा, मर चुका है, इसलिए वैनिश हो गया है वो इंसान। एंड वॉइस विच ही विल नेवर हियर अगेन, हाँ जो बंदा नहीं रहा, जो इंसान नहीं रहा, उसका वॉइस कैसे सुना जा सकता है? वो तो नहीं है, इसलिए वो वैनिश हो गया और वो नहीं रहा, एब्सेंट हो गया, है ना। अच्छा, रिटोरिक यहाँ पर क्या क्या यूज़ किए जा रहे हैं? मेटाफर, एल्यूशन, एल्यूशन मतलब सिम्बॉलिज्म, वैनिश्ड हैंड एंड स्टिल वॉइस आर सटल रेफरेंसेस टू डेथ एंड लॉस। द ओ फॉर कंस्ट्रक्शन एम्फसाइजेस लॉन्गिंग, डिजायर, ठीक है। नेक्स्ट स्टैंजा 4 में हम देख सकते हैं ब्रेक 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 एट द फुट ऑफ दाई क्रैग्स ओ सी, ठीक है। रिपीट्स द क्रैशिंग ऑफ वेव्स, जो कि सेम टू बिगिन विद शुरू किए थे, तो ऐसे ही शुरू किया गया था। हिज ग्रीफ परसिस्ट लाइक दी अनएंडिंग सी, इनका जो ग्रीफ है, इनका जो सॉरो है, सैडनेस है, ये खत्म नहीं हो रहा है, जस्ट लाइक अनएंडिंग सी। रिपीटेशन अगेन एम्फसाइजेस इमोशनल ट्यूमोल्ट एंड द सीजलेस मोशन ऑफ नेचर, ठीक है। नेक्स्ट लाइन में हम देख सकते हैं बट द टेंडर ग्रेस ऑफ अ डे दैट इज डेड विल नेवर कम बैक टू मी। ही मोन्स दैट द हैप्पी ग्रेसफुल डेज विथ हिज फ्रेंड आर गॉन फॉर एवर एंड कैन नॉट रिटर्न, मतलब जो हैप्पी मोमेंट्स थे, जो कि बहुत चीयरफुल मोमेंट्स थे, ही हैज़ स्पेंट विथ हिज फ्रेंड, उनका फ्रेंड अभी नहीं रहा, इसीलिए दैट दोज हैप्पी डेज विल नेवर कम बैक। एंड जो रिटोरिक है ना, यहाँ पर मेटाफर की यूज़ किए गए हैं, टेंडर ग्रेस एंड the day that is dead personify and idealizes his memories making the sense of irrecoverable loss vivid, मतलब जो लॉस कभी पूरा नहीं हो सकता, ठीक है। यहाँ पर रिपीटेशन हुआ जा रहा है। तो ओवरऑल डिवाइसेस यूज्ड, यहाँ पर ओवरऑल जो कि रिटोरिक और फिगर्स ऑफ स्पीच यूज़ किए गए हैं, जो कि रिपीटेशन, डेफिनेटली ब्रेक ब्रेक ब्रेक, ये तो रिपीट किया जा रहा है, और ये बता रहा है कि ब्रेकिंग ऑफ वेव्स एंड द सेंस ऑफ ऑन गोइंग ग्रीफ। एपोस्ट्रॉफी के बारे में बातें किए जा रहे हैं, ओ सी, हाँ याद है ना, ओ सी बोल के, जैसे कि ये एक नॉन ह्यूमन थिंग है, पर इसे एक ह्यूमन के द्वारा ट्रीट किया जा रहा है, बुला रहा है, ठीक है। जक्स्टापोजिशन हमने ऑलरेडी नोट किया है। जक्स्टापोजिशन मतलब सैडनेस और हैप्पीनेस, जो कि दो और कैरेक्टर्स थे, एक था सेलर लैड और एक था कि एक फिशर बॉय था, उसका सिस्टर के साथ वो खेल रहा था, और द पोएट तो सैड था ही। तो ये जो कंट्रास्टिंग इमोशंस हैं यहाँ पर दिखाए गए हैं कि सेलर कंट्रास्ट विद द पोएट्स sorrow। And next we have metaphor, symbolism, the sea, the ship, vanished hand, still voice, all symbolize loss, life and death, ठीक है। elegiac tone, हाँ ये तो the poem mourns मतलब रोना, ठीक है, mourns मतलब रोना, cry, the poem mourns the poet's friend, its melancholic mood is central। Sound devices, alliteration, break break break, cold grey stones, rhythm evoke the crashing sea and emotional unrest, enjambment, lines flow into one another mimicking restless waves and the poet's stumbling thoughts। One more thing, that is the poem Break 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 by Alfred Lord Tennyson is written in memory of his close friend Arthur Henry Hallam. Okay, this person's death actually motivates the poet Alfred Lord Tennyson to write this elegy, Break Break Break. The poem expresses Tennyson's deep feelings of grief and loss. See, this is an elegy, grief and loss after Hallam's untimely death and reflecting his mourning and sense of isolation। Isolation मतलब अलग हो जाना, अकेले रहना, ऐसा कुछ। Arthur Henry Hallam died suddenly on September 15, 1833 at the age of 22. We will discuss MCQs, the possible MCQs of this particular topic, break break break, in upcoming videos. Till then, keep studying and don't forget to subscribe. Keep sharing this particular video with your friends and needy one. Make sure कि जिनको ये पर्टिकुलर वीडियो हेल्प करेगा उन लोगों तक ये वीडियो पहुंचना चाहिए, है ना। हमारा यही मोटो होना चाहिए, टारगेट होना चाहिए, है ना। तो ठीक है, ऑल द वेरी बेस्ट, कीप स्टडिंग, until then, goodbye, don't forget to subscribe। This is the picture of Arthur Henry Hallam, friend of Alfred Lord Tennyson। Goodbye।